I will tell you about the interference with white light. Now, as we know that white light contains different colors. The visible colors are ranging from violet to red, and their wavelengths are also different. So, because of that, we will have the interference pattern, but that will be somewhat different from that which is with the coherent light source, coherent monochromatic light source. So, if the white light source is introduced, then what will happen to the interference pattern? As we know that there is the limited number of wavelengths, so there will be the limited number of fringes on the screen. Few colored fringes will be observed on the screen. Due to white lights. Due to white lights. We know that at the center all the colors will merge, so they will form the white light. So the central fringe will be white. The central fringe is white. स्वेत होती है बिल्कुल वाइट होती है, जैसी लाइट होती है वाइट उस तरीके की वाइट फ्रिंज होती है. There are colored fringes on both sides of central fringe. White central fringe. All these fringes are of unequal width because lambda is different for the different colors. All fringes are of unequal width. As you can see that we have this beta is equal to lambda into d upon d. So we can have this beta is proportional to lambda. So for different lambda, now we have this big curve V I B G Y O R. So this is now suppose lambda V. This is now suppose lambda R. Then we know that here on this side the lambda increases. Lambda increases. Lambda increases. So this means that the violet fringe will be of smaller thickness and red will be of
broadest thickness. So this beta violet fringe is of minimum thickness or minimum width and red fringe is of maximum width So what we have? That this lambda V, this beta V is less than beta R. Less than beta R. And I have told you that there are a few fringes which are visible because here we are having the 7 colors: violet, indigo, blue, green, orange, yellow, orange and red. So there's 7 colors. So now which fringe will be nearest to the center fringe? That is this violet, and red color will be farthest. The violet fringe is nearest to center fringe. And red fringe will be farthest from central fringe. तो ये किस तरह से, जैसे हम मान लें कि यहाँ पर ये सेंट्रल फ्रिंज होती है, सपोज दिस इज नॉट सेंट्रल फ्रिंज, दिस इज नॉट सेंट्रल फ्रिंज, तो यहाँ पर ये जो होगी वो वायलेट होगी, दिस इज नॉट वायलेट, देन दिस इज नॉट योर इंडिगो, दिस इज ब्लू, दिस इज ग्रीन एंड दिस इज येलो, दिस इज orange and this is red. Similarly on this side, this is now white, this is now white fringe. So now here we will have, this is now violet, this is indigo, and this is now blue, and this is now green, and this is yellow, this is orange, and this is red. So this is white, this is white. अब इस white फ्रिंज के इधर भी फ्रिंजेस हैं और इधर भी फ्रिंजेस हैं, लेकिन नियरेस्ट इसमें वायलेट है ऑन बोथ साइड्स और इसमें फार्देस्ट रेड है, ये रेड कलर है. सो ओनली दिस काइंड ऑफ पैटर्न इज अवेलेबल. एंड now then you can see that there is the dark fringes also. So in case of dark fringe, the inner side of dark fringe
is violet and outer side of dark fringe is red. तो कर देंगे जैसे ये आपके डार्क फ्रिंज है, दिस इज नॉट डार्क फ्रिंज, तो यहाँ पर इसकी वायलेट है, तो वायलेट के बाद में जो होगा इसमें इनर साइड यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इनर साइड में ये वायलेट होगा, फिर ये लास्ट में जाकर के यहाँ पर रेड होगा, उसके बाद फिर ये इंडिगो कलर की इसमें फ्रिंज आएगी। ऐसे यहाँ पर जो ब्राइट डार्क फ्रिंज होगी, तो उस डार्क फ्रिंज के अंदर ये वाला इनर जो पार्ट होगा वो इसका डार्क होगा, वो वायलेट होगा, और इसका आउटर साइड जो होगा वो रेड होगा। तो जैसे हमने ये मान लिया कि यहाँ पर ये डार्क फ्रिंज है, सपोज दिस इज नॉट डार्क फ्रिंज, दिस इज नॉट डार्क फ्रिंज। ये है डार्क फ्रिंज, दिस इज नॉट डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज का इधर का ये इनर पार्ट है, ये इसका आउटर पार्ट है, तो ये जो इनर पार्ट है, ये इनर पार्ट ये होगा इसका वायलेट, और ये जो आउटर पार्ट है ये इसका होगा रेड, और बीच में ये ब्लैक होगा पूरा। तो इसकी जो किनारी होती है, जो अंदर की किनारी है, जो अंदर की साइड है वो वायलेट, और बाहर की साइड है वो रेड होती है। इससे इसमें जो इंटेंसिटी होती है वो सबकी इक्वल नहीं होती। ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज, और colored fringes are of unequal intensity, unequal intensity। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि लाइट सोर्स एक ही प्रकार का होता है, सोडियम लाइट यूज करते हैं, तो that sodium light will have all the bright fringes to be yellow color, तो उसमें इंटेंसिटी सबकी इक्वल होती है। लेकिन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं व्हाइट लाइट सोर्स, तो व्हाइट लाइट सोर्स के अंदर लैम्डा सबका डिफरेंट होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस और कलर्ड फ्रिंजेस इज नॉट इक्वल, तो इनकी विड्थ भी इक्वल नहीं होती है और इनकी इंटेंसिटी भी इक्वल नहीं होती है। और जो स्क्रीन होता है उस पर हमें कुछ ही फ्रिंजेस विजिबल होती हैं, बाकी का इसमें कुछ नहीं होता। जो हायर ऑर्डर फ्रिंजेस होती हैं वहां पर इक्वल इल्यूमिनेशन होता है। Uniform illumination takes place for higher order fringes on the screen.
तो ये वहाँ पर इक्वल इल्यूमिनेशन होता है, इसलिए कुछ ही डिस्टेंस के अंदर ये फ्रिंजेस दिखाई देती है, उसके बाद कोई फ्रिंज दिखाई नहीं देती है। सो दिस इज व्हाट द इंटरफेरेंस विद द वाइट लाइट। इसका यूज क्या है, इसका इस वाइट लाइट को क्यों यूज करें हम इसको, इसका बेनिफिट क्या है हम। तो जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सभी ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल इंटेंसिटी की होती है, तो उसमें ये पता नहीं होता है कि कौन सी फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज है। तो उस सेंट्रल फ्रिंज को स्क्रीन पर पता करने के लिए ये व्हाइट लाइट सोर्स लगाते हैं। तो जैसे व्हाइट लाइट सोर्स लगाएंगे तो एक फ्रिंज जो होगी उसमें व्हाइट आती है, तो जो व्हाइट फ्रिंज आ रही है वही उसकी सेंट्रल फ्रिंज है। तो जस्ट टू लोकेट द सेंट्रल फ्रिंज ऑन द स्क्रीन दिस व्हाइट लाइट इज यूज्ड। The central fringe in YDSE is located by using white lights, white light source। तो हम इसका इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि सेंट्रल फ्रिंज से हम देखना चाहते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज से कितनी फ्रिंज इधर की तरफ है, कितनी फ्रिंज इधर की तरफ है। तो उसमें फ्रिंजेस काउंट करने के लिए भी हमें सेंट्रल फ्रिंज का लोकेशन जरूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रल फ्रिंज आपने लोकेट नहीं की तो आप ये नहीं बता सकते कि सेंट्रल फ्रिंज से लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कितनी इसमें डार्क फ्रिंज है, कितनी इसमें ब्राइट फ्रिंज है, दैट वी कैन नॉट फाइंड। सो सिमिलरली अगर हम इसका यूज करते हैं और इससे हम सेंट्रल फ्रिंज को लोकेट कर लेते हैं और सपोज उसके बाद आपने इस व्हाइट लाइट सोर्स को हटा करके आपने फिर वही पहले वाला सोर्स लगा दिया, तो आपने जो ट्रांसपेरेंट शीट लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीच में इतनी फ्रिंजेस इसकी लेफ्ट साइड के अंदर शिफ्ट हुई और इतनी फ्रिंजेस इसमें राइट साइड के अंदर शिफ्ट हुई। सो दैट वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन। सो दिस इज व्हाई दैट white light source is introduced for the location of central bright fringe. So you all like, share and subscribe the video. Thank you very much.